Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students. So I am taking today the further part of cash book, triple column cash book. So in my earlier videos I have discussed with you people the single column cash book also and the double column cash book also. Single column is that cash book in which only one amount column is there on both the sides. Double column cash book is that cash book in which two columns on each side, that is cash and bank. Okay, and today we are going to discuss the triple column cash book. So what is the triple column cash book? The cash book in which three columns on both the sides are there. One column is for discount, one column is for cash, and one column is for bank. And on the other side also same discount, cash and bank. Okay, so let's start without wasting the time. So I have taken the transactions also, how you will post the entries in this triple column cash book, that I am going to discuss today. So I think meaning मैंने आप लोगों को समझा दिया है. What is the triple column cash book? ट्रिपल कॉलम में आपकी दोनों तरफ तीन तीन कॉलम्स होते हैं. सो पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं क्विकली. सबसे पहला कॉलम आपका है, ये है आपकी डेबिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड. सो इन डेबिट साइड यू हैव डेट, रिसिप्ट्स, ledger folio, discount column, cash column and bank column. Okay, so the three columns of amount are there. Yani till there here it is same, date, receipts and ledger folio. Okay, then discount, cash and bank, three columns of amount. After that again on the credit side, date, payments, because on credit side you show the payments. So payments, ledger folio and same discount, cash and bank. Okay. On both the side cash and bank column, that we have done in double column cash book also. Here we are taking one extra column, that is discount. अब जब हम discount को debit में लिख रहे हैं तो it is the discount allowed. Okay, and when we are writing it on the credit, so it is discount received. Okay, discount allowed is when we are making the sales and the person is making the payment to us or we are receiving the payment. तो हम जो उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे दैट विल बी शोन इन द डेबिट साइड एज रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड. तो जैसे आपको ये अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और उसके अंदर आप कुछ डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट आप कहाँ शो करेंगे? डेबिट में ही, क्योंकि रिसिप्ट डेबिट में आएगी. ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड इज व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट फॉर क्रेडिट परचेजेस. जब हम पेमेंट कर रहे हैं परचेजेस के लिए, सो हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है. Okay, so payment is shown on the credit side. तो discount which we are receiving while making the payment, वो भी हम कहाँ show करेंगे? Credit के अंदर. Okay, so this head is clear. And discount received and discount allowed, they are not balanced. They are only totaled. Okay, so now we come to the transaction. अब मैं इसमें transaction ले लेती हूँ तो इसमें आपका discount वाला head भी साथ ही में आ जाएगा. Okay, so just see. पहले आपको समटाइम इट इज गिवन बैलेंस, समटाइम तो इट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड जब बिजनेस नया स्टार्ट होता है, और कभी कभी आपका क्या है जब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, एट दैट टाइम यू मस्ट बी हैविंग द कैश एंड बैंक बैलेंस. तो जनरली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं इन दैट द कैश बैलेंस एंड द बैंक बैलेंस इज गिवन. ओके, सो कैश बैलेंस इज ऑलवेज शोन ऑन द डेबिट साइड एंड बैंक बैलेंस इफ नथिंग इज मेंशन्ड विद इट विल बी शोन ऑन डेबिट. But if it is written credit or overdraft balance, then it will be shown on credit. बैंक overdraft का मतलब पता है आपको कि बैंक से जब आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं, यानी the current account holder get a facility from the bank that they can withdraw extra amount which they have in their accounts. यानी उनके अकाउंट में अगर 1 लाख है तो वो उससे कुछ ज्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं अप टू सर्टेन लिमिट. ओके, सो उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है. तो अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो वो क्रेडिट में शो होगा बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी. एंड अगर बैंक बैलेंस है, द डेबिट बैलेंस, दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड एज इट इज एन एसेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कैश बैलेंस 70,000, बैंक बैलेंस क्रेडिट 80,000. अब अगर क्रेडिट वर्ड साथ लिखा है तो दैट मीन्स इट इज योर ओवरड्राफ्ट बैलेंस. ओके, सो आप इसको कहाँ शो करेंगे? पहले डेबिट बैलेंस आप कैश का कैश कॉलम में शो करेंगे और बैंक वाला बैंक कॉलम में ऑन द क्रेडिट साइड यू विल शो. तो दोनों तरफ आपकी एंट्री आएगी
2 balance brought down, buy balance brought down. 2 for the cash balance and buy for the bank balance. Okay. Next is your cash sales. I think cash sales की entry सबको clear होगी. 2 sales in the cash column. Okay. 40,000 की sale है, in the cash column you will show it as it is a cash transaction. Goods purchased by check. Now by check means we have made the payment by check. Okay. So check से अगर हम पेमेंट करेंगे by purchases तो it will be deducted from bank only. Okay. So you will show it in the bank column on the payment side. As concept is very much clear. जितनी भी आपकी receipts है वो आपने डेबिट में शो करनी है. तो जितनी कैश रिसिप्ट है वो कैश कॉलम में आएंगी, जितनी चेक से रिसिप्ट होंगी वो बैंक कॉलम में आएंगी. एंड पेमेंट्स में आपका क्या होगा? द कैश पेमेंट्स विल गो इन द कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड and the bank payments or the check payments will go on the credit side or in the bank column. Okay. So next is your received from Roshan by check rupees 78,000 in full settlement of 80,000. अगर आपका amount 80,000 का था but he has given us 78,000 तो 2,000 का discount हो गया. Okay. So that will be shown on this side. So you will write to Roshan. He has given check. So we will see 78,000 in the bank column and 2,000 in the discount column. Now I am showing it in the bank because in the whole transaction or whole entries it is not written when this check is deposited. So if you remember, मैंने आपको अपने journal के part में बताया था, if the check is received and deposited on the same day, तो it will be recorded in the bank column directly or the entry will come with bank only. Okay. लेकिन अगर वो उसी दिन डिपॉजिट नहीं होता है सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज कैश. ओके. एंड लेटर ऑन आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय डिपॉजिटिंग द कैश इन द बैंक. यानी चेक को आप कैश ट्रीट करेंगे, बाद में आप उसको जब डिपॉजिट करेंगे सो आप कैश डिपॉजिट की एंट्री डालेंगे. क्लियर है? सो यहाँ पर क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में इट इज नॉट मेंशन दैट द चेक इज डिपॉजिटेड, so we will assume that it is deposited on the same day. ये आपको हमेशा कंसिडरेशन में लेना है अपने कि अगर डेट कुछ भी मेंशन नहीं है कि when it is deposited, तो you will assume that it is deposited on the same day. But if it is deposited on some other day, आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे, अगर वो लिखा हुआ है आगे किसी डेट में डिपॉजिट हुआ तो आपकी डिपॉजिट की एंट्री उस डेट पे आएगी, उससे पहले आप उसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर है? सो नाउ दिस चेक में इसमें कुछ नहीं लिखा तो हमने 78 यहाँ लिया, 2,000 डिस्काउंट लिया और टू रोशन करके इसको दिखा दिया. देन कम्स द पेड टू राकेश इन फुल सेटलमेंट रुपीज 29,000 फॉर 30,000. 30,000 का अकाउंट था, हमने उसको 29,000 पे किया. 1,000 ही हैज गिवन अस द डिस्काउंट. सो डिस्काउंट रिसीव्ड विल कम इन दिस साइड. सो बाय राकेश 29,000 we have made the payment from cash and 1,000 is the discount which he has given us or we have received it. Okay. Then comes the received check from Satish rupees 20,000. अब सतीश से हमें चेक रिसीव हुआ, सिर्फ इतना लिखा है 20,000. अब इसके बाद हम देखेंगे it is written on the next day यानी after 2 days deposited the check in bank. यानी चेक को है बैंक में हमने डिपॉजिट किया. तो अब आप एक एंट्री पहले डालेंगे टू सतीश, जो हमें चेक रिसीव हुआ, दैट वी विल रिकॉर्ड इन द कैश. जस्ट सी आई हैव रिकॉर्डेड इट इन द कैश बिकॉज डिपॉजिट डेट इज लिटिल लेटर, यानी बाद में डिपॉजिट हुआ है वो. और जब डिपॉजिट की एंट्री आएगी तब आपकी एंट्री क्या आएगी? बैंक टू कैश. इट विल बी अ कॉन्ट्रा एंट्री. ओके. जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, आपकी एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश. सो यू विल राइट बाय बैंक टू कैश, और कैश के सामने आप बैंक कॉलम में, बैंक के सामने कैश कॉलम में. सो इट विल बी कैश डिपॉजिट एंट्री. ओके. सो वन मोर एंट्री विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन. 13th को इट इज रिटन चेक डिसऑनर्ड. अब जो चेक हमने डिपॉजिट किया वो डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब आपको क्लियर है? द चेक इज नॉट बीइंग पेड और ऑनर्ड बाय द पर्सन who has to pay it. यानी सतीश ने उसका ऑनर नहीं किया, so bank has refused the payment of that. Okay, so at that time we will write the by Satish on that date in the bank column. Okay, ये समझ में आ गया कि अगर आपका चेक रिसीव होगा and it is not deposited on the same day, तो you will record it as cash. So you will to Satish in the cash column. Okay, when it is deposited in the bank,
तो यू विल डिपॉजिट इट इनटू द बैंक ऑन द डेबिट साइड बाय राइटिंग द एंट्री ऑफ कैश डिपॉजिट। आप एंट्री कौन सी लिखेंगे? कैश डिपॉजिट की। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। टू कैश यहाँ आ जाएगा, बाय बैंक यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कैश से निकलेगा और बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तब आप उल्टी तरफ यानी पेमेंट साइड में आप दोबारा से सतीश का नाम दिखा देंगे, बाय सतीश, एंड इन द बैंक कॉलम यू विल शो इट। क्लियर हो गया? तो वो डिसऑनर हो गई। सो आई थिंक मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से। आफ्टर दैट इट इज रिटन विड्रू फॉर ऑफिस यूज, इट इज कैश विड्रॉन। सो वो एंट्री आपकी सेम ही रहती है जैसे आप डबल कॉलम कैश बुक में कर रहे थे। कैश विड्रू करेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी कैश टू बैंक। ओके, सो यू विल राइट बाय कैश टू बैंक। इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है? कैश विड्रॉ करने की। सो बैंक में से आपका निकलेगा, कैश में आपका बढ़ेगा। तो कैश में डेबिट साइड में आएगा, बैंक में क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर? क्योंकि कैश में से बैंक में से पेमेंट हो रही है, कैश में इंक्रीज हो रहा है। देन कम्स द कैश सेल्स, it will come as it is, two sales in the cash column 50,000. Okay, then deposited in bank rupees 30,000. अब जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब आपकी कैश डिपॉजिट की एंट्री आएगी बैंक टू कैश। तो इट विल कम एज टू कैश इन द बैंक कॉलम, बाय बैंक इन द कैश कॉलम। सेम जो एंट्री मैंने पिछली बार भी बताई थी आपको, डिपॉजिट की एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ओके, और विड्रॉल की एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ओके, इस एंट्री को याद रखेंगे और इससे आप इनको दोनों को कॉन्ट्रा एंट्री यानी ये दोनों हेड्स यहां पर आएंगे। देन कम्स पेड वेजेस, दैट विल बी बाय वेजेस, एंड पेड सैलरी बाय चेक। तो जो सैलरी लिखेंगे वो बैंक कॉलम में दिखा देंगे, वेजेस आप कैश कॉलम में दिखा देंगे। क्लियर हो गया? यानी पेमेंट इज शोन ऑन द पेमेंट साइड ओनली। देन कम्स द बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस क्या होते हैं? जो बैंक हमारे किसी भी अकाउंट के किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए जो चार्जेस लगाता है, सो दे विल ऑल्सो कम ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ पेमेंट। सो बाय बैंक चार्जेस एंड इट विल बी शोन इन द बैंक कॉलम ओनली ऑन द क्रेडिट साइड। ये कैश में नहीं पे किए जाते, ये हमेशा बैंक से ही डिडक्ट होंगे। ओके, विड्रू फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से कोई पैसा आप पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो इट इज ड्रॉइंग्स, और अगर ऑफिस यूज के निकालेंगे तो कैश विड्रॉल। ठीक है, सो बाय ड्रॉइंग्स इन द बैंक कॉलम। क्लियर हो गया? एंड देन लास्ट में इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रुपीज 300। वो इंटरेस्ट कहाँ आएगा? बैंक ने हमें अलाउ किया यानी हमें बेनिफिट हुआ है। सो इट इज एन इनकम, सो वी विल रिकॉर्ड इट एज टू इंटरेस्ट एंड इट इज रिसीव्ड इन द बैंक कॉलम, सो इट विल बी शोन इन बैंक ओनली। क्योंकि वो इंटरेस्ट कभी भी बैंक कैश में नहीं देता, इट इज शोन इन द बैंक कॉलम एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन द बैंक ओनली। क्लियर है? फिर आप इसके बाद क्या निकालेंगे? बैलेंस निकालेंगे। सो जो डिस्काउंट अलाउड होगा उसका आप टोटल करेंगे, इधर डिस्काउंट रिसीव का टोटल करेंगे, बट वी डोंट बैलेंस देम, दे आर टू डिफरेंट हेड्स। डिस्काउंट अलाउड इज अ एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। क्लियर है? आफ्टर दैट वी विल टोटल द कैश कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। दोनों को ऐड करके आपका बैलेंस हमेशा क्या आएगा? क्रेडिट में ही आना चाहिए, कैश वाले हेड का। क्लियर है? एंड इट इज द क्लोजिंग बैलेंस इन द क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस विल कम इन द डेबिट साइड। यानी यहाँ आपने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,04,000 एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,04,000। ओके, अब बैंक का निकालेंगे तो बैंक का जो बैलेंस है, क्योंकि इसमें ओवरड्राफ्ट था, पहले से ही ज्यादा निकाला हुआ था पैसा, तो आपका क्या है? क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग, आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, इट इज कमिंग 1,63,200, और डेबिट साइड आपकी कम आ रही है, तो डेबिट साइड में आपने बैलेंस शो करना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब जब यहाँ बैलेंस आ गया 34,900, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन द ओपनिंग ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? और वो बैंक कॉलम में आएगा। सो होप मैंने ये आपको कैश बुक वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक in which 3 columns are there: discount, cash and bank on one side, and then again discount, cash and bank on another side. और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉलम आप पहले इधर लिख रहे हैं वही उधर पहले लिखेंगे। Like discount is coming first, there also discount will come first. Then it is coming cash, there also it will come cash. Then bank and then bank. अब इसमें आपकी मेन एंट्री जो है वो डिस्काउंट वाली है। जब भी हम फुल फाइनल पेमेंट करते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इज देयर,
एट दैट टाइम सम डिस्काउंट इज रिसीव्ड और अलाउड, वो डिस्काउंट आपने शो करना है. इफ यू आर रिसीविंग तो डिस्काउंट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि रिसिप्ट आपका डेबिट साइड में आता है. इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट सो इट इज shown on the credit side, so discount will also come on the credit side, so that discount is discount received, वो आपका discount received होता है. ओके और दूसरा जो इसमें एक important part था that I have explained was the check one. When the check is received it is recorded as cash received. आप उसको कैश रिसीव की तरह रिकॉर्ड करेंगे, यानी यू विल राइट द नेम ऑफ द पर्सन और उसको आप कैश कॉलम में दिखा देंगे. लेटर ऑन आगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट दिखाएंगे तो वो डिपॉजिट की जो एंट्री आएगी वो कैसी एंट्री आएगी, कैश डिपॉजिट करने की. ओके सो दैट विल बी बैंक टू कैश. क्लियर हो गया. अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड बाय राइटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन. ओके यानी हम उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और बैंक कॉलम में उसको दिखा देंगे, सो वो आपका क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा. क्लियर है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, if no date is mentioned of deposit तो we will assume that it is deposited on the same day. आप जब भी कोई लिखा होगा कि received check तो आप देखेंगे पूरे नीचे कहीं लिखा है कि it is deposited, it is not written, तो आप उसको assume करेंगे कि it is deposited on the same day. क्लियर हो गया. और जनरली लिखा होता है कि it is deposited on the same day या 2 दिन बाद उसका डिपोजिशन मेंशन होता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स होप मैंने आपको ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है. सो होप यू विल लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स so that everyone can take the benefit of this. Okay students, see you in my next video. Till then, bye bye.